डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो लास्ट हमने डिस्कस किया था वो था रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन डिस्कस की थी, रिडक्शन डिस्कस की थी, रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस किया था। उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको बताएगी, फिर उस डेफिनेशन के मुताबिक दो तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो एक्सप्लेन किए थे। फिर बॉन्ड फॉर्मेशन की एग्जांपल से समझाया था भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही प्रोसेस में कैसे हो रहे हैं। एक प्रोसेस में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहे हैं और रिडॉक्स प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। आप इस चैप्टर में आगे रिडॉक्स प्रोसेसेस की बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस की बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा गैल्वानिक सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, गैल्वानिक सेल का भी थोड़ा बहुत बताना है। आगे चल के डिटेल आएगी तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया था कि गैल्वानिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है। जिस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर मोल्टन NaCl एट 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट किया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में बिजली उसमें से गुजारते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में से। तो जब बिजली गुजारते हैं तो फ्री आयंस होते हैं, वो आयंस माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। कुछ आयंस एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। और इस तरीके से जिस तरह मेटल इज कलेक्टेड एज एट कैथोड लाइक सोडियम, in case of NaCl, electrolysis of NaCl, we get two products at electrodes. At anode we get at cathode we get sodium, at anode we get chlorine. So these are the pure products during the electrolysis of NaCl. अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है इस चैप्टर में, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम then it changes of course to ion when it acquires a charge. So charge present on an atom in the form of ion is called oxidation state, or you can say if there is a compound, in case of compound like NaCl, this is one positive, this is one negative. These are oxidation states. So charge present on atom of an element in a compound is called its oxidation state. Or in free state, even in free state like sodium. Now sodium is in free state metal, gold metal is gold metal Au, silver metal Ag. So these are
pure things. These are substances, and they they have metals have positive oxidation state. Non-metal have mostly have negative oxidation state or neutral. But for the sake of convenience, we take oxidation state of a compound, oxidation state of an element, atom of an element in a compound. Oxidation state of atom of an element in a compound हम वो चेक करते हैं. Now rules of oxidation state. First rule is element in free state. About the element in the free state. Element in the free state, of course, when it is not combined with any other element, then or with itself, atoms are combined with itself. That is metallic bonding in case of metals. So when atom loses electron, it gains a positive charge. When atom gains electron, it gains a negative charge, as long as the charges are concerned. The element in free state, for example, sodium is zero, oxidation state is zero. Potassium oxidation state 0, calcium oxidation state 0, gold oxidation state 0, silver oxidation state 0. So these elements are in free state, so their oxidation state is 0. For example, O2 and 2, their oxidation states are also 0. Whether molecular in nature, even then their oxidation state is 0 because they are not combined to another element. They are alone. When they are alone, they are not combined with any other element. Their oxidation state is taken equal to 0. This is the rule for the general rule for the oxidation state, first rule. Then comes the second rule. इन एग्जांपल्स पे आप गौर करें. इन एग्जांपल्स के मुताबिक पोटेशियम 1 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, सल्फर 2 नेगेटिव है, सिल्वर 1 पॉजिटिव है. इन पे ये चार्जेस हैं, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो एलिमेंट, अगर अकेला एलिमेंट है, अलोन है, किसी से कंबाइंड नहीं है, आज़ाद उसका वो वजूद है, तो उस सूरत में अगर वो आयनिक है, एलिमेंट का आयन है, प्योर एलिमेंट का आयन है, और वो जो आयन है लाइक के पॉजिटिव, पोटेशियम का जो आयन होगा वो के पॉजिटिव होगा. पोटेशियम का आयन है के पॉजिटिव. अब ये जो प्योर इसका कंपाउंड का प्योर एलिमेंट का जो आयन है के पॉजिटिव, ये पोटेशियम का आयन है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है. 1 पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड रूल, फर्स्ट रूल,
that the oxidation state of element in the free state is zero. Second rule, the oxidation state of an ion, oxidation state of ion uh, consisting of a single element, consisting of a single element is the same as the charge written on the ion. यानी कि आयन के ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जिस तरह पोटेशियम की 1 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है क्योंकि ये फ्री एक एलिमेंट जो है वो अलोन है, उसकी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 नेगेटिव, सल्फर की है 2 नेगेटिव सल्फाइड के केस के अंदर, सिल्वर की Ag1 पॉजिटिव है। तो ये था दूसरा रूल। अब हम तीसरे रूल की तरफ जाते हैं। तो तीसरा रूल ये है, तीसरा रूल हाइड्रोजन के बारे में है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम कंपाउंड्स के अंदर +1 होती है। ग्रुप 1 से इसका ताल्लुक है, हाइड्रोजन साहब का ग्रुप 1 से ताल्लुक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। मेटल हाइड्राइड्स के अंदर -1 होती है, और बाकी तमाम कंपाउंड के अंदर पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में जितने भी कंपाउंड हैं उन सब के अंदर इसकी +1 होती है। फॉर एग्जांपल HCl, so H is 1 positive, Cl is 1 negative, तो हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव है। लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में NaH है, मेटल हाइड्राइड है तो मेटल पे पॉजिटिव होता है, मेटल पे तो नेगेटिव चार्ज हो ही नहीं सकता। यानी कि मेटल कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होती, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। यानी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत लो होती है, इतनी लो होती है भाई वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या गेन नहीं कर सकती, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने को तरजीह करती है मेटल। तो ये मेटल है तो इसने तो लूज करना है इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन डुप्लेट रूट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम से लिया तो NaH बना। इसमें सोडियम डोनर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इसलिए ये 1 नेगेटिव है यहाँ पर। तो इस एक मिसाल से ही आपको समझ जाना चाहिए कि मेटल हाइड्राइड जो होता है, इसकी और मेटल हाइड्राइड की बड़ी मिसालें हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉन मेटल हाइड्राइड है। तो मेटल हाइड्राइड की ये मिसालें हैं ये सारी, सिवाय इसके, ये तो वैसे पड़ा है। तो सोडियम हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन 1 नेगेटिव है। सो अब जो रूल क्लियर हो गया कि हाइड्राइड 1 नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन का जो आयन है, हाइड्रोनियम आयन, वो 1 पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्टली 1 होती है, 1 पॉजिटिव होती है, और कुछ कंपाउंड जो कि मेटल हाइड्राइड्स हैं सिर्फ,
उनमें हाइड्रोजन 1 नेगेटिव होती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से लूज कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन फिर उस केस में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, तो उस पर प्लस चार्ज नहीं आता, बल्कि -1 चार्ज आ जाता है, +1 नहीं आता। तो सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स के केस में मेटल हाइड्राइड्स यानी मेटल प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, मेटल हाइड्राइड क्या होता है? मेटल प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। अब मेटल हाइड्राइड के अंदर मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, 1 नेगेटिव होगी। एक्चुअली 1 नेगेटिव कहते हैं, -1 आमतौर पे नहीं कहते, 1 नेगेटिव होगी। और मेटल की पॉजिटिव होगी, चाहे 1 पॉजिटिव है, चाहे 2 पॉजिटिव है, चाहे 3 पॉजिटिव है, चाहे 4 पॉजिटिव है, whatever it is। उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। हाइड्रोजन का रूल हो गया भाई, हाइड्रोजन के ज़्यादातर कंपाउंड में +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और मेटल हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज अबाउट ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की भी बात हो गई, अब बात है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? 2 नेगेटिव। In most compounds, oxygen is 2 negative. That is its stable, most stable valency of oxygen is O2 negative. In most cases, it is O2 negative, except peroxides, superoxides, and OF2. These are exceptions. These are exceptions. In peroxides, oxygen is 1 negative. In superoxides, oxygen is -1/2. Like peroxide, example of peroxide is H2O2, Na2O2, and example of superoxide KO2. In this case, it is +1 into 2, 2 positive. This is -2. This is +1, 1 positive into 2, and this is -2 into 2, -4 +4. Rule of valencies is that they should cancel out. +4 and -4, they cancel out each other, and compound overall is neutral. Compound is neutral overall. Compound has no charge, net charge. Compound is neutral. So superoxides, and in case of OF2, oxygen is the more electronegative element. In this case, we will check that which one is the more electronegative element than the other one. Both are electronegative. Oxygen is electronegative element, highly electronegative element.
Fluorine is also highly electronegative element. Most electronegative element in the periodic table is fluorine, and then comes oxygen. So both are electronegative, but this is more electronegative. It is one negative into two negative. So this is two positive. These should cancel out. So compound is neutral with zero charge. OF2, 2 positive, and this is because this is 2 negative. Why this is 2 negative? One fluorine has 1 negative, two fluorines have multiplied by 2 negative. This was our next rule, and the rule coming ahead is about the total of all the elements, sum of the oxidation states of all the elements, sum of oxidation states of all the elements is equal to 0 in a neutral compound. In a neutral compound, sum of oxidation state of all the elements is equal to 0. On the other hand, in case of an ion that contains two or more elements, like NH4 1 positive. This is ion with two elements, nitrogen and hydrogen. One nitrogen atom, four hydrogen atom, and they have combinedly one positive charge. So this is another example. तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक हमारे पास हो NH4 1 पॉजिटिव तो N प्लस H4H इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव लेंगे. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी अगर X हो, इसकी 4 इंटू 1 पॉजिटिव हो इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव. इसको करेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3. सो नाइट्रोजन इज 3 नेगेटिव. ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आगे आर्टिकल आएगा उसके अंदर कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेकिन आप सिर्फ ये समझें कि इन दोनों के का मिला के ये ग्रुप ऑफ एटम का चार्ज है 1 पॉजिटिव. ये एक एलिमेंट का चार्ज नहीं है, एक एलिमेंट के एक एटम का चार्ज नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ एटम का चार्ज है जिसको रेडिकल आम जुबान में कहते हैं. लेकिन रेडिकल बाज़ औक़ात एलिमेंट के आयन को भी क्या कहते हैं मिसलीडिंगली. रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज इज कॉल्ड अ रेडिकल. तो ये एक रेडिकल है और आयन है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव और प्लस 1. कोई और हो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं CO3 2 negative. If C is X plus 3O is equal to minus 2 लेंगे.
x plus 3 into 2 negative is equal to minus 2, x minus 6 is equal to minus 2, x equals minus 2 plus 6 प्लस 4। तो इसके अंदर कार्बन का +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारी चीज़ें हम आगे मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ मैंने हल्का सा टच दिया है, इंट्रोडक्शन कराया है सिर्फ, ताकि आपका इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये मजबूत हो जाए। दूसरी बात ये है कि रूल्स हमने पढ़े। एक रूल ये भी है जो मैंने एक रूल में 2 रूल पढ़ा दिए आपको। एक रूल में 2 रूल कैसे पढ़ा दिए? मैंने बताया था OF2 के अंदर ऑक्सीजन जो थी ये 1 नेगेटिव इंटू 2 नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव, और ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और फ्लोरीन की 1 नेगेटिव होती है, 2 फ्लोरीन है तो 1 नेगेटिव इंटू 2 नेगेटिव। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, sum of oxidation states of all the elements in a compound is equal to 0, so that the compound is neutral. Otherwise compound can't be neutral if it is not 0. If it is not 0, then it is a radical or ion. Sum of oxidation states of all the elements in a compound is equal to 0. This is very important rule. You should know this rule all the time on your fingertips. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स पढ़े। ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स क्या हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? किसी एटम के ऊपर, कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, चाहे +1 चार्ज हो, चाहे +2 हो, चाहे +3 हो, चाहे +4 हो, उसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ये चार्ज नेगेटिव में भी हो सकता है, -1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। इसकी एग्जांपल्स आगे आएंगी तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 एंड करता है अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड इट वाज मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, and you should memorize this topic well in order to understand the whole chapter. Then there is a whole chapter. If you will not understand, you will not memorize these rules concerning the oxidation number, then you won't be able to understand the coming topics. So therefore you have to memorize this in order to understand the next lecture. So Allah Hafiz, fi amanillah.